Hello students, we are going to start chapter 1 changing trends and career in physical education. In this chapter, first topic is meaning and definition of physical education. Next is aims and objectives of physical education. Third topic is career option in physical education. Fourth topic is competitions in various sports at national and international level. And last topic, Khelo India program. Now start with meaning and definition of physical education. Now start with meaning and definition of physical education. Physical education is composed of two words. Physical means body and education means modification of behavior. Thus means education through the medium of physical activities. Physical education basically दो पार्ट में, दो वर्ड्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकंड वन इज एजुकेशन. फिजिकल मीन्स रिलेटेड टू योर बॉडी, रिलेटेड टू योर मसल्स, ठीक है. एंड एजुकेशन मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. दस मीन्स एजुकेशन थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. मीन्स के एजुकेशन लाइक देर आर लोट्स ऑफ चेंजेस. जैसे कि अगर हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ पर ओनली फिटनेस यूज नहीं होती. वहाँ पर आपका बिहेवियर भी काउंट होता है, वहाँ पर डिसिप्लिन भी काउंट होता है, वहाँ पर सोशल आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, ठीक है, सोसाइटी में या ग्रुप में या फिर टीम के साथ, ये भी सब चीज डेवलप्ड होती है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज. It aims on overall development of human being. Means के overall development होता है, like physical development, mental development, social development, emotional development and behavioral development. There are lots of changes with the help of physical education. Basically 18th century में physical education program introduce करा गया था, where physical education was integral part of school curriculum. और वहां पर स्कूल करिकुलम में करा गया था. Since then, many changes have taken place and various aspects have emerged with time. मीन्स कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहा, जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होती रही फिटनेस में भी या फिर कल्चर में भी, तो उसी के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में भी चेंजेस होते रहे. उसके साथ साथ टॉपिक्स ऐड होते रहे. तो फिजिकल एजुकेशन का मेन रोल यही है कि जैसे जैसे चेंजेस होते हैं हमारी सोसाइटी में या फिर फिटनेस में या हर चीज में, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे अंदर भी डेवलपमेंट होना चाहिए. क्लियर? डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद बिग मसल्स एक्टिविटी एंड देयर रिलेटेड रेस्पॉन्सेज. मीन्स कि फिजिकल एजुकेशन बेसिकली फिजिकल एजुकेशन का मेन मोटिव ये होता है जो बिग मसल्स है हमारी बॉडी की, जैसे थाई मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, चेस्ट मसल्स किस तरीके से वर्क करती है, उनको उनका मैक्सिमम आउटपुट हम किस तरीके से ले सकते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में या फिर अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है. सेकेंड डेफिनेशन जो है वो है चार्ल्स ब्यूचर. Physical education is an integral part of the total education process and has at its aim the development of physically, mentally, socially, emotionally fit citizen through the medium of physical activities. Means के physical education जो main motive है, main target जो है कि overall development करना by physical development, mentally, socially and इमोशनली, हर तरीके से एक ह्यूमन बीइंग के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे कि वो सोसाइटी में अपने आप को प्रूव कर सके. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. एम्स इज द अल्टीमेट वन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. द मीन्स एंड वेज एंड वी अडप्ट टू अचीव आर एम एंड कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. Those are all-round development like physical development, mental development, social development, emotional development and spiritual development. These are the development with the help of physical education.
First objective is physical development. The main objective of physical education is physical development. The physical education related to several physical activities. When we do any physical activities, it affects our different body system, blood circulation, circulatory system, muscle system, digestive system. बहुत सारी हमारे बॉडी के अंदर इंटरनली और एक्सटर्नली जो चेंजेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट. क्योंकि जब हम फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं उसके अंदर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, क्योंकि जब तक ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी के अंदर नहीं होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, जब तक हमारी मसल्स वर्क नहीं करेंगी. रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इनटेक कर सकते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम कि जब तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, हमें एनर्जी या हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड नहीं होंगे. तो बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट का मेन रोल यही है कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी हेल्प से हमारे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो चेंजेस के अंदर बहुत सारे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मसल्स और ऑर्गन्स वर्क करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज मेंटल डेवलपमेंट. There should be some activity in physical education which keep our brain alert and concentrate. बेसिकली क्या है, मेंटल डेवलपमेंट में जब भी हम कोई वर्क करते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलते हैं तो उसके अंदर हमारा रिएक्शन टाइम और एक तरीके से कंसंट्रेशन हमारा फोकस रहता है. मीन्स कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर मैक्सिमम दें, या फिर जो भी रिएक्शन करना है, हमें कोई भी स्किल करनी है या फिर कोई डिफेंस करना है, अटैक करना है, तो उसके अंदर हमारी जो मसल्स के साथ साथ हमारा माइंड जो है वो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, एक तरीके डिसीजन ले रहा है कि किस टाइम पे कौन सा मूवमेंट हमारे लिए हेल्पफुल है. यही मेंटल डेवलपमेंट है. नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल डेवलपमेंट. फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू सोशल स्किल्स विच आर हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन. प्लेयर्स ऑफ डिफरेंट रीजन कम टुगेदर और सिंगल प्लेटफॉर्म. So they learn cooperation, support, respect, sportsmanship और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि सोशल डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं. जैसे कि जब हम मैच खेल रहे हैं तो उस टाइम पे किस प्लेयर के साथ किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है, प्लेयर को कैसे हेल्प करनी है, हेल्प करने के साथ साथ रेस्पेक्ट, कोई सीनियर है कोई जूनियर है, रेस्पेक्ट कैसे करनी है, सपोर्ट करनी है, कोई प्लेयर वीक है तो वो उस मैच में अच्छा परफॉर्म कर सके. बेसिकली सोशल डेवलपमेंट का यही रोल है कि आप सोसाइटी में या फिर अपनी टीम में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाओ और उसके अंदर वहां पर अपने एक सोशल रिलेशन डेवलप कर सको. नेक्स्ट टॉपिक इज इमोशनल डेवलपमेंट. बेसिकली इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल एजुकेशन इज द मेक एन इंडिविजुअल इमोशनली डेवलप थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज. मीन्स के बहुत सारे इमोशंस होते हैं लाइक हैप्पीनेस, जेलेसी, होप, डिप्रेशन, जॉय, व्हील एंड वाव. मीन्स के ये सारे जो हमारे इमोशंस है इसको कंट्रोल करना, किस तरीके से कहां पर कौन से इमोशन को कंट्रोल करके आपको रिएक्ट करना है, ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला मैच को लूज करने के बाद इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो रहा हो और आप वहां पर इंजॉय कर रहे हो बहुत ज्यादा. तो वहां पर उन्हें मोटिवेट भी करना है, बूस्टअप भी करना है कि नेक्स्ट टाइम पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. और उसके साथ साथ एंग्जाइटी मीन्स कि जब कोई प्लेयर स्टार्टिंग में खेलना स्टार्ट करता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है. एंग्जाइटी के अंदर अगर जब तक हम उसे मोटिवेट नहीं करेंगे वो स्पोर्ट्स में अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. लास्ट टॉपिक इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर एन इंडिविजुअल इज टू रिफ्लेक्ट टाइम टू evaluate their experience to allow them to bind a positive mindset and promote progression. Means के एक ट्रस्ट करना, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना कि अगर कोई भी एक हमारा टारगेट अचीव करना है हमें तो उसके अंदर हमारा जो एक बिहेवियर है वो पॉजिटिव होना चाहिए और ट्रस्ट करके उस स्पोर्ट्स में या फिर उस जो आपने प्रोग्राम स्टार्ट करा है उसके अंदर मैक्सिमम आउटपुट दे सको. दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन.
Our next topic is career option in physical education. The opportunity in the field of physical education were teaching and training only till 1990. Basically 1990 में हमारा फिजिकल एजुकेशन का फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है. देयर आर एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन. बेसिकली जो पीपल का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था फिजिकल एजुकेशन के अंदर, इसी वजह से अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी स्टार्ट करी गई थी. इंक्रीज द इंटरेस्ट टुवर्ड्स ट्रेनिंग एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिविटीज. मीन्स के जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसके बाद बहुत सारी हमारी अपॉर्चुनिटीज इंट्रोड्यूस करी गई थी, ठीक है. लाइक फर्स्ट वन इज टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन. मीन्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग. टीचिंग मीन्स रिलेटेड टू स्टडी एंड ट्रेनिंग मीन्स जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर जो भी स्कूल लेवल पर प्रोग्राम स्टार्ट होता है वहां पर जो ट्रेनिंग दी जाती है वही ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है. सेकेंड वन, द करियर व्हेन द एमर्ज ऑफ इट्स रिलेटेड टू हेल्थ मैनेजमेंट, स्पोर्ट परफॉर्मेंस एंड मीडिया. हेल्थ रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम थे वो स्टार्ट हुए, मैनेजमेंट रिलेटेड, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड एंड मीडिया. ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में. तो ये दो टाइप के करियर्स 1990 में इंट्रोड्यूस करे गए थे, ठीक है. अब देखते हैं करियर्स कौन कौन से हैं. अब टीचिंग करियर में कौन कौन से सेक्टर है जहां पर हम जा सकते हैं. टीचिंग करियर में फर्स्ट है वो है एलिमेंट्री लेवल. एलिमेंट्री लेवल मीन्स नर्सरी टू 5th क्लास. नर्सरी टू 5th क्लास में बेसिकली बच्चे के अंदर बेसिक ग्रोथ डेवलप होती है, ठीक है. वॉक करना, मूवमेंट करना, ठीक है, बेसिक कोऑर्डिनेशन डेवलप होना. तो एक फिजिकल ट्रेनर या फिजिकल एजुकेशन टीचर का मेन रोल यही रहता है कि उसका कंप्लीटली डेवलपमेंट हो. जैसे कोई डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए. अगर कोई डिफॉर्मिटी है तो उसकी एक्सरसाइज करके वो डिफॉर्मिटी खत्म की जा सकती है, क्योंकि एलिमेंट्री लेवल के जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होती है. सेकेंड वन इज एट मिडिल लेवल. मिडिल लेवल के अंदर बेसिकली 6 to 8 ये हमारे एक स्पोर्ट्स की स्टार्टिंग कैटेगरी है. इसके अंदर हम इस कैटेगरी को हम सब जूनियर कैटेगरी भी कहते हैं, और फिजिकल एजुकेशन में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से स्टार्ट होता है इस कैटेगरी में, क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर, कोच या फिजिकल एजुकेशन टीचर का मेन रोल सब जूनियर कैटेगरी में प्लेस आनी चाहिए या फिर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है. थर्ड वन इज सेकेंडरी लेवल. सेकेंडरी लेवल भी कह सकते हो और इसे हाई लेवल भी कह सकते हो. ये बेसिकली 9th और 10th है. जब बच्चा सब जूनियर में अच्छी ट्रेनिंग करके आया है, ग्रोथ अच्छी करके आया है, उसकी ग्रोथ अच्छी हुई है, डिफॉर्मिटी भी नहीं है, तो इस लेवल पे जाके वो जूनियर कैटेगरी में मैक्सिमम लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने आप को स्पोर्ट्स में प्रूव कर सकता है. लास्ट कैटेगरी इन स्कूल लेवल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल. सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेसिकली 11th और 12th क्लास. फर्स्ट वन इज टीचिंग करियर, सेकेंड वन इज स्पोर्ट्स करियर. टीचिंग करियर के अंदर 11th 12th के अंदर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, ठीक है. फिजिकल एजुकेशन टीचर वो सब्जेक्ट भी लेना होता है, उसके साथ साथ ग्राउंड में स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गई या फिर किसी स्पोर्ट्स में कोई स्पेशलाइजेशन है तो उस गेम की टीम को भी रेडी करना होता है, ठीक है, ठीक है. उसके बाद लास्ट जो सेकंड लास्ट कैटेगरी है हमारी एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल. इन केस अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर अपनी जॉब प्रोफाइल बनानी है तो उसके लिए उसे एमफिल, पीएचडी या नेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है. विदाउट एमफिल, पीएचडी या नेट क्वालिफाई वो कॉलेज लेवल में जॉब अचीव नहीं कर सकता, ठीक है. सेकेंड वन इज इन ट्रेनिंग सेक्टर. ट्रेनिंग सेक्टर स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी. ट्रेनिंग मीन्स एज ए कोच, ठीक है. वो स्कूल लेवल की टीम को भी रेडी कर सकता है, कॉलेज लेवल कर सकता है और यूनिवर्सिटी लेवल की भी टीम को रेडी कर सकता है. तो बेसिकली उसे इन 3 के जगह पर जाके वो अपनी ट्रेनिंग करा सकता है बच्चों को. ट्रेनिंग कराने के साथ साथ एक टीम को रेडी कर सकता है. सेकेंड वन इज वेरियस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट. बेसिकली
जो हमारे स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जैसे अलग अलग कॉलेजेस हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें भी वो अपना करियर बना सकता है। थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल रिक्रिएशनल, मीन्स के इंडस्ट्री लाइक बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ पर भी आजकल ट्रेनर्स को, कोचेस को बेसिकली वो भी उनके बीच में भी कंपनीज के बीच में आपस में कंपटीशन होते हैं। कंपटीशन के लिए वो अपनी टीम को अच्छा करने के लिए कोचेस को हायर करते हैं और अपनी टीम को अच्छे लेवल पर लेके जाते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट मीन्स के जैसे कोई स्टेडियम है, क्लब्स हैं, ठीक है, या फिर जिम है, वहाँ पर एक तरीके से बेसिकली स्टेडियम है, कॉम्प्लेक्स हैं, या फिर बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट की वैकेंसीज होती हैं, वहाँ पर वो ज्वाइन कर सकता है और उसे फैसिलिटी या मैनेजमेंट होता है, मैनेज करना होता है कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए और किस किस तरीके से प्रोवाइड करा जाएगा। एंड लास्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर मीन्स एडमिन करना, ठीक है, ओवरऑल चेक करना है कि कौन सा प्रोग्राम कैसे चल रहा है, स्पोर्ट्स में जो जो फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है वो अच्छे से सक्सेसफुली हो रही है या नहीं हो रही। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का यही रोल होता है और वैकेंसीज होती हैं इसकी बहुत सारी, यहाँ पर ज्वाइन करा जा सकता है। लास्ट वन इज इन हेल्थ फिटनेस रिलेटेड सेक्टर। हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड सेक्टर, फर्स्ट वन इज स्पोर्ट्स फिटनेस, ट्रेनिंग मेडिसिन, ट्रेनर मेडिसिन, स्पोर्ट्स डाइटिशियन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जिम्स, एथलेटिक ट्रेनर, हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री। बेसिकली ये सारी जो हमारी अपॉर्चुनिटीज हैं विद द हेल्प ऑफ इन हेल्थ फिटनेस रिलेटेड सेक्टर। फर्स्ट वन इज स्पोर्ट्स फिटनेस। स्पोर्ट्स फिटनेस में बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर होते हैं जो फिटनेस डेवलप करवाते हैं, उसमें भी हायर कराया जाता है। तो इनके अलग अलग कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जो कि डिप्लोमा कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज जिसको करने के बाद ये जिम में ठीक है, स्टेडियम्स में, कॉलेजेस में, कंपनीज में अच्छे से जॉब अचीव कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रेनर मेडिसिन, मीन्स के मेडिसिन, किस मेडिसिन का क्या यूज है, किस टाइम पे किस तरीके से कौन सी मेडिसिन यूज होगी स्पोर्ट्स में अच्छे से अचीव करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर्ट्स डाइटिशियन। डाइटिशियन, क्योंकि जब तक हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और डाइट अच्छी नहीं ले रहे, जब तक हमारी परफॉर्मेंस इनहांस नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, बेसिकली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का ये रोल है कि मेंटली करना, पॉजिटिवली उसमें डेवलपमेंट करना, ये सब साइकोलॉजी का ही काम है। क्योंकि जब तक आप कोई भी स्पोर्ट्समैन साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। नेक्स्ट इज इन जिम्स एज एथलेटिक ट्रेनर। जिम्स में आपने देखा होगा कि जो ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है, उसमें जो ट्रेनिंग होती है बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, अलग अलग मसल्स की, या किसी को एथलेटिक बॉडी चाहिए। एथलेटिक बॉडी मीन्स के बहुत ज़्यादा ओवर मसल्स नहीं चाहिए, एक एथलेटिक फिगर चाहिए, तो उसके लिए जिम ट्रेनर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन हेल्थ फिटनेस रिलेटेड सेक्टर में लास्ट जो टॉपिक है वो है हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्री में फिटनेस ट्रेनर हायर करे जाते हैं उनके एम्प्लॉय को फिट रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज इन परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर। फर्स्ट प्लेयर्स लाइक इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, जितने भी प्लेयर्स हैं दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स। उसके बाद स्पोर्ट्स प्लानिंग ऑफिसर्स। स्पोर्ट्स प्लानिंग ऑफिसर्स मीन्स के जो टीम को किस तरीके से खिलाना है, कैसे पार्टिसिपेट कराना है, जो वो सारा अरेंज करते हैं, ठीक है, वो स्पोर्ट्स प्लानिंग ऑफिसर होते हैं कि किस गेम में क्या क्या रूल्स होने चाहिए, कौन से रूल्स आईओसी ने चेंज करे हैं। जो आईओसी मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और आईओए मीन्स इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो आईओसी ने कौन से रूल्स बनाए हैं, न्यू रूल्स चेंजेस करे हैं, इंट्रोड्यूस करे हैं, जो आईओए को फॉलो करने हैं। नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मैंने लास्ट में भी आपको समझाया था कि मैनेज करना स्पोर्ट्स को, कि कौन सा स्पोर्ट्स किस तरीके से खेला जाएगा, उसके ग्राउंड किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है,
इक्विपमेंट अरेंज करने हैं और कौन कौन सी फैसिलिटी स्पोर्ट्समैन को प्रोवाइड करनी है। लास्ट टॉपिक इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बेसिकली जैसे जैसे प्लेयर की परफॉर्मेंस बढ़ती रहती है वैसे वैसे उसे अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। जैसे स्टेट खेल लिया, स्टेट खेलने के बाद नेशनल खेलने जाएगा, वो नेशनल खेलने के बाद वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन फेडरेशन की हेल्प से ही उसे इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। लास्ट टॉपिक इज इन मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, बुक ऑथर, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मार्केटिंग एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बेसिकली अगर किसी बहुत अच्छी स्पीच है जिसकी, ठीक है, बोलने में बहुत अच्छा है, वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, ठीक है, फोटो उसे क्लिक करने बहुत अच्छे आते हैं, तो वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में अपना एक करियर ऑप्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग बेसिकली जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के चैनल हैं, उनमें जिस तरीके से हम मैचेस देखते हैं या फिर कोई भी कंपटीशन इजीली अपने घर में चैनल्स के थ्रू देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इन स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। लास्ट वन इज सेकंड लास्ट स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मार्केटिंग। किसी भी इक्विपमेंट की अगर एडवर्टाइजिंग होगी या मार्केटिंग होगी, जब भी वो मार्केट में बहुत अच्छे से सेल होगा। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एडवर्टाइजिंग करना जानते हो या फिर आप इक्विपमेंट को सेल बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसके बारे में एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो ये भी एक करियर है जिस बेस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स किसी भी इक्विपमेंट की आप इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, और भी स्पोर्ट्स के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो आप मार्केट में अवेलेबल कर सकते हो अपने ब्रांड के थ्रू। क्लियर? बेसिकली ये सारे कोर्सेज के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज होते हैं। तो इन कोर्सेज को करने के बाद जैसे टीचिंग करियर के अंदर बीपीएड करना या मास्टर्स करना या फिर नेट क्वालिफाई करना, ये टीचिंग करियर के अंदर है। ट्रेनिंग करियर के अंदर एनआईएस का सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है, या फिर डिप्लोमा कोर्स करके आप किसी भी कॉलेज में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में या स्टेडियम्स में ज्वाइन कर सकते हो। हेल्थ फिटनेस रिलेटेड करियर के भी अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं कि जहां पर आप वो सर्टिफिकेट कोर्स करके एज ए फिटनेस ट्रेनर कहीं पे अपने आप को अपनी ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर। आपका अगर खेलने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहे हो, तो वहां पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट वन इज इन मीडिया सेक्टर। इन मीडिया सेक्टर में बेसिकली अगर आप मीडिया से रिलेटेड या फिर से रिलेटेड कोई अगर कोर्स कर रहे हो या फिर डिप्लोमा डिग्री कर रहे हो, तो उस बेस पे आप किसी भी न्यूज़ चैनल में, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में या फिर किसी भी मार्केट में अपनी जॉब अचीव कर सकते हो। तो ये सारे करियर्स हैं जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर आप इजीली कोर्सेज के और यहाँ पर अपनी जॉब अचीव कर सकते हैं।